Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new topic, that is development of male gametophyte. Male gametophyte means pollen grains. Okay, pollen grains are called the male gametophyte because pollen grains contain the male nucleus. Two male nucleus are present inside each pollen grain. Therefore, pollen grain are known as the male gametophyte. Okay, first of all, the development of the male gametophyte involves the study of the following cases. क्या होता है आपका, बहुत सारे आपके cases involve होते हैं. The first study is of the stamen. As we know that the stamen or the combination of the stamen is known as the endoecium, and it is the male reproductive unit of the angiospermic plant. It is the male reproductive unit of the angiospermic plant, and each stamen is consist of mainly two parts. The first part is the long and cylindrical stalk, which is known as the filament. Long and cylindrical stalk known as the filament, and the second is the terminal, generally bilobed structure called the anther. It means that each stamen consists of the two parts. The first part is the filament and the second part is the anther. The filament is the long and cylindrical portion of the stamen, and the anther is the terminal and generally bilobed structure of the stamen. Okay, तो ये दो पार्ट होते हैं, and one more part is there which is not most important, that is the connective. Connective is the structure which connect the filament to the anther, जो क्या करता है आपका filament को anther के ऊपर क्या करता है आपका connect करता है. Okay, now next point is that the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. तो क्या होता है आपका, the function of the filament is the attachment of the stamen to the flower. क्या करता है आपका, जो filament होता है वो आपका क्या करेगा, stamen को क्या करता है आपका attached करता है किसके ऊपर, आपका flower के ऊपर, and the stamen may be attached to the thalamus. वो directly आपका thalamus पर भी आपका attached हो सकता है. आपका thalamus is the basal swollen portion on which the floral parts are present. Okay, and in the second condition the filament may be attached to the पेटल. क्या होगा आपका, पेटल के ऊपर क्या रहता है आपका, अटैच्ड रहता है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द एपीपेटलस कंडीशन. ये फ्लावर की कौन सी कंडीशन कहलाती है आपकी, एपीपेटलस कंडीशन कहलाती है आपकी. ऐसे ही आपका एपीसेपलस कंडीशन भी होती है, जब आपका फिलामेंट यानी कि स्टेमन किसके ऊपर अटैच्ड होंगे, आपके किसके साथ, आपका सेपल के साथ क्या रहते हैं, आपके अटैच्ड रहते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द फिलामेंट. द फंक्शन ऑफ द फिलामेंट इज द अटैचमेंट ऑफ द स्टेमन टू द फ्लावर. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the number and the length of the stamen are variable in flower of the different species. It means that the number and length of the stamen, numbers आपके may be 2, 3, 4, 5, 6 आपके कुछ भी हो सकते हैं आपके नंबर्स आपके स्टेमन्स के, और जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है आपकी, वेरिएबल होती है आपकी स्पीसीज टू स्पीसीज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हेन द स्टेमन्स आर एक्यूमुलेटली आर नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म, दैट इज द endoecium. Okay, so this is the information about the stamen. Now coming to the next point, that is the structure of an anther. As we know that the anther is most important part of the stamen. stamen का सबसे most important part क्या होता है आपका, anther होता है. क्यों होता है आपका anther? Because inside the anther the process of the microsporogenesis takes place. माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन की क्या होती है आपकी प्रोसेस, कहाँ कंप्लीट होती है आपकी, एंथर में कंप्लीट होती है. बिकॉज एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इन विच 4 pollen sacs आर देयर, जिसमें क्या होते हैं आपके pollen sac होते हैं, एंड ईच pollen sac इज द यूनिट ऑफ द pollen grain, जिसमें क्या होते हैं आपके pollen grains का क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इनको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर. Okay, generally it is bilobed structure. Mainly it is bilobed structure with 2 theca. क्या होता है आपका, bilobed structure होता है with 2 theca, means 4 lobe like structures are there. इसमें क्या होगा आपका, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है आपका, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके हर एक लोब के अंदर क्या होते हैं आपके 2 थीका होते हैं, आपके राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं. देयरफॉर इट इज नोन एज अ डाइथीकस कंडीशन एंड सेपरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रनिंग लेंथ वाइज. क्या होगा आपका, एक दूसरे से सेपरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से क्या होंगे आपके, एक दूसरे से आपके सेपरेट होते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, विद इन 1 एंथर देयर आर द 4 थीका. कितने थीका होते हैं आपके, 4 थीका होते हैं, क्योंकि एक लोब में कितने थीका होते हैं आपके, 2 थीका होते हैं, और एंथर आपका मेनली बाइलोब होता है. तो कितने थीका हो गए आपके, 2 + 2 = 4. कितने थीका हो गए आपके, 4 हो गए, यानी कि 4 pollen sac आपके वहाँ पर को क्या रहते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस कंडीशन इज नोन एज द डाइथीकस कंडीशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइथीकस कंडीशन, व्हेन ईच लोब कंटेन 2 थीका एंड देयर आर द 2 लोब्ड. जब आपके एंथर में 2 लोब होंगे और हर एक लोब में आपके 2 थीका होंगे, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है आपका, डाइथीकस कंडीशन बोला जाता है. व्हेन देयर इज अ सिंगल लोब, कभी कभी क्या होता है आपका एंथर क्या होता है आपका सिंगल लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, एंड एट दैट कंडीशन ओनली 2 थीका इज देयर, केवल 2
थीका आपके वहाँ प्रेजेंट होंगे तब उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, आपका मोनोथीकस कंडीशन बोला जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन क्रॉस सेक्शन द एंथर इज 4 साइडेड और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसकी अभी मैंने बात की आपकी जो थीका होते हैं आपके 4, उनके अंदर क्या होते हैं आपके हर एक थीका में आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जिसको पॉलन सैक भी बोला जाता है। ओके, लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब, हर एक लोब में कितने होते हैं आपके 2 होते हैं, हर एक कोने पे क्या होंगे आपका, एक कोने में एक प्रेजेंट होगा, दूसरे कोने में दूसरा क्या होगा आपका प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से कितने आपके माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर। लेटर द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड बिकम द पॉलन सैक इनिशियल स्टेज। इन द यंग स्टेज में क्या होता है आपका जो आपके जो 4 आपके राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं आपके, उनको क्या बोला जाता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। बट व्हेन द माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर, जब ये क्या हो जाते हैं आपके मैच्योर हो जाते हैं, इसमें आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है या हो चुका होता है, एट दैट टाइम द माइक्रोस्पोरेंजियम आर नोन एज द पॉलन सैक। एट दैट कंडीशन दे आर ऑल्सो नोन एज द पॉलन सैक विच आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। बस यही डिफरेंस है आपका। ड्यूरिंग द यंग कंडीशन पॉलन सैक आर नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजियम, और वी कैन से दैट when the pollen microsporangium mature then they are known as the pollen sac, and inside the pollen sac there are numbers of the pollen grains are there. Okay student, now this is the diagram of the anther, or we can say that anther filament. It means that it is a diagram of the stamen. This is the single stamen, and we can see that the bilobed structure is the anther and 2 lobes of anther. These are the 2 lobes of the anther, and this is the filament. Filament is also known as the stalk. Okay, and at the maturity we can see that this is the typical structure of a stamen in which the 4 pollen सैक, और वी कैन से दैट द माइक्रोस्पोरेंजियम आर देयर। जब आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब आपका ये केवल स्पोरोजीनस टिश्यू से भरा होगा, मास से भरा होगा, तब इसको क्या बोला जाएगा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाएगा। और जब इसमें आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, आपका पॉलन ग्रेन फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है आपका पॉलन सैक बोला जाता है आपका। दीज आर द पॉलन ग्रेन्स एंड दीज आर द लाइन ऑफ द डाइसेंस, यानी कि जहाँ से आपका क्या होगा आपका पॉलन ग्रेन क्या होंगे आपके रिलीज होंगे, आपकी वॉल क्या होगी आपकी रप्चर होगी, और पॉलन ग्रेन्स का क्या होगा आपका रिलीज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द टिपिकल stamen, or we can say that the androecium, or we can say that the male reproductive part of the flowering plants. Okay, now next is the structure of microsporangium. अब हम एक typical microsporangium के structure की बात करेंगे. So a typical microsporangium is surrounded by the 4 wall layers. How many wall layers are there? 4 wall layers are there. We can see that these layers are the epidermis. Outermost layer is the epidermis, and the second innermost layer is the endothecium. Then the middle layers, and last one is the tapetum. Tapetum is the innermost layer and epidermis is the outermost layer. Out of these 4 layers, these 3 layers, that is the epidermis, endothecium and middle layers, these 3 layers are the protective in nature. ये क्या होती हैं आपकी केवल नेचर में क्या होती हैं आपके प्रोटेक्टिव ही होती हैं, इनका इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं होता है। बट द tapetum is the important layer and it is the innermost layer and which is the nutritive in nature. ये क्या होती है आपकी न्यूट्रिटिव होती है आपकी नेचर में, यानी कि जो आपका इसके अंदर जो आपका डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स हैं उनको क्या करेगा आपका नरिशमेंट क्या करेगा आपका प्रोवाइड करेगा। तो जो एपिडर्मिस होती है इट इज़ अ सिंगल लेयर। आप देख सकते हैं कि दिस इज द कनेक्टिव आपको पता है कि जहाँ पर को आपका क्या होगा आपका फिलामेंट क्या होगा आपका एंथर से अटैच्ड होता है, वो पोर्शन क्या कहलाता है आपका कनेक्टिव कहलाता है। और यहाँ पर को वेस्कुलर सप्लाई क्या होती है आपकी प्रेजेंट रहती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कनेक्टिव इज द प्लेस वेयर द वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। यहाँ क्या होंगे आपके वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम क्या रहेंगे आपके प्रेजेंट रहेंगे। एंड दीज जाइलम एंड फ्लोएम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट मटेरियल। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट एपिडर्मिस। सो वी कैन सी दैट द आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, ये आपकी एपिडर्मिस है। देन उसके बाद जो सेकंड आपकी लेयर आएगी दैट इज द एंडोथीशियम। उसके बाद जो लेयर आएगी वो क्या होगी आपकी मिडिल लेयर्स। यहाँ पर को टर्म यूज हो रहा है आपका मिडिल लेयर्स, नॉट इज द मिडिल लेयर। तो जो मिडिल लेयर होती है आपकी वो 1 से लेकर के आपकी 3 लेयर तक हो सकती है। कितनी वॉल हो सकती है उसमें आपकी, यहाँ आपकी मेनली 1 वॉल दिखाई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका 1, 2 और 3 भी हो सकती है। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द टैपिटम, आपकी इनर मोस्ट लेयर आपकी टैपिटम है। देन टैपिटम के बाद क्या आएगा आपका पॉलन माइक्रोस्पोरेंजियम आ जाएगा आपका, यानी कि पॉलन सैक आ जाएगा, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। और इसी के अंदर क्या होती है आपकी पॉलन फॉर्मेशन की क्या होती है आपकी प्रोसेस, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है आपकी कंप्लीट होती है। सो दिस इज द इन लार्ज व्यू, दिस इज द एपिडर्मिस, दिस इज द एंडोथीशियम एंड दिस इज द मिडिल लेयर। देन दिस इज द टैपिटम, ये क्या है आपकी जो ब्लू कलर से दिखाई गई है आपकी टैपिटम है आपकी। और इसके बाद ये क्या है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि यही बाद में आपका डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के क्या करते हैं आपका पॉलन मदर सेल बनाते हैं। फिर पॉलन मदर सेल में आपकी मियोसिस की प्रोसेस होगी,
होगी, जिससे क्या होगा आपका माइक्रोस्पोर्स का क्या होगा आपका फॉर्मेशन होगा। तो रिमेंबर द outermost layer is the epidermis and innermost layer is the tapetum and epidermis, endothecium and middle layers are protective in nature। ये क्या होती है, केवल नेचर में आपकी प्रोटेक्टिव होती हैं, बट tapetum is the most important layer, this is the innermost layer, this provide the nourishment to the developing microspores, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में भी हेल्प करेगा, माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और साथ में उनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन वॉल। ये पॉलन वॉल के फॉर्मेशन में भी क्या करता है आपका टैपिटम हेल्प करता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये आपका 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, एंड दिस इज द इन लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ द यंग एंथर। ये आपका यंग एंथर हम देख सकते हैं कि ना अभी कोई भी आपकी प्रोसेस यहाँ होती हुई नहीं दिखाई दी है, आपकी केवल 4 आपके क्या हैं आपके पॉलन से या फिर आपके माइक्रोस्पोरेंजियम आपके दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस इज द डाइथिकस कंडीशन। डाइथिकस मीन्स विदिन वन लोब देयर इज अ 2 पॉलन सैक। आप देख सकते हैं टोटल आपके कितने आपके 4 हैं, 4 होंगे तो क्या बोला जाएगा डाइथिकस कंडीशन। और अगर केवल आपका एक ही लोब होगा आपका और उसमें केवल आपके 2 पॉलन सैक होंगे या 2 आपके माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, एट दैट टाइम दिस कंडीशन इज नोन एज द मोनोथिकस कंडीशन। Okay student, now here the function of the protective layers. Here the outer 3 wall layers are protective in function and help in the dehiscence of the anther to release the pollen grains. What is the meaning of the dehiscence? It means that the rupturing of the wall of the anther, ताकि क्या हो सके आपके pollen grains क्या हो सके आपके रिलीज हो सके, किसके लिए आपकी pollination की प्रोसेस के लिए। and the tapetum that is the innermost layer nourishes the developing microspores or pollen grains। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया है द सेल्स ऑफ द tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। It is most important point that the cells of the tapetum has more than one nucleus। क्या होता है आपका जो tapetum की cells होती हैं उनमें आपका dense cytoplasm तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा आपका जो cells होंगी उनके पास एक से ज़्यादा क्या होगा आपका nucleus पाया जाता है आपका। when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसाइड द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक क्या होता है आपका होमोजीनस मास पाया जाता है आपका सेल्स का। उस होमोजीनस मास को ही क्या बोला जाता है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू बोला जाता है। और यही स्पोरोजीनस टिश्यू बाद में आपका डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के क्या करते हैं आपका पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन में क्या करते हैं आपका पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।